میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، زندگی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اس ڈپارٹمنٹ سے کے اندر یقین جانو مکمل رہنمائی اگر اس دنیا کے اندر کسی نے کی ہے یا کر کے دکھلایا ہے تو وہ عظیم ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، محدثین کی کتابوں کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کیسا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، اللہ کے نبی اوپر میں جب چڑھتے تھے، اونچائی پر جب چڑھتے تھے، سیڑھیوں پر جب چڑھتے تھے تو کس انداز سے چڑھتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو کس انداز سے ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے۔ ذرا ہم غور کریں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، معائنہ کریں کہ وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو کیسے نکلتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا، کیا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے کہ دوستوں کیسے ہوتے تھے، کس انداز سے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب باہر نکلتے تھے تو اللہ کے نبی مسجد سے جب باہر نکلتے تھے تو کس انداز سے نکلتے تھے، کیا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی وضو کیسے کیے، پیشاب اور پاخانہ کیسے کیے، دنیا کی ضرورتوں کو کس طریقے سے اللہ کے نبی نے پوری کیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو زندگی کا کوئی بھی ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک نقطہ ایسا نہیں ہے کہ جس نقطے کے اندر، جس لمحے کے اندر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی کا کوئی بھی ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک نقطہ ایسا نہیں ہے کہ جس نقطے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تشنا لگ رہی ہو اور آپ نے تشنا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہو۔ زندگی کا کوئی بھی ایک منٹ، ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نظر ڈالتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم اچھا شوہر بن گئے تو اچھا باپ نہیں بن سکے، اچھا باپ بن گئے تو اچھا بیٹا نہیں بن سکے، اچھے بیٹے بن گئے تو اچھا حاکم وقت نہیں بن سکے، اچھا مسلح نہیں بن سکے، اچھا عابد نہیں بن سکے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر کون سی ایسی شخصیت تھی جو اچھا بیٹا بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو، اچھا شوہر بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو، اچھا باپ بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس دنیا کے اندر وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی عظیم ہستی تھی جو اس دنیا کے اندر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اچھا مسلح بن کر کے اپنی زندگی گزارا ہو، اچھا عابد بن کر کے اپنی زندگی گزارا ہو، اچھا شاکر بن کر کے اپنی زندگی گزارا ہو، اچھا حاکم وقت بن کر کے اپنی زندگی کو ثابت کیا ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ کون سی شخصیت تھی جو اس دنیا کے اندر اچھا جج بن کر کے اپنی زندگی بسر کیا ہو، اچھا حاکم بن کر کے اپنی زندگی ثابت کیا ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، وہ شخصیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اچھا عابد، ایک عبادت گزار، ایک اچھا شاکر، ایک شکر گزار بندہ بن کر کے اپنی زندگی گزارا ہو، وہ عظیم شخصیت تھی، وہ ہستی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی کے ان جیسے اس دنیا کے اندر اگر کسی کو دیکھنا ہو اور وہ مکمل ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور سے سنو، پورے سمندر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 63 سال کی اس بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی زندگی کو اللہ نے ایک کوزے میں بند کر دیا اور ایک چھوٹے سے گھڑے میں، لوٹے میں بند کرتے ہوئے بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے ہی
बेहतरीन साँचे और ढांचे के साथ अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर एक छोटी सी आयत का टुकड़ा नाजिल किया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के लोगों, दुनिया वालों, मैंने तुम्हारे लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को एक बेहतरीन आइडियल और एक बेहतरीन नमूना बना दिया है। अब ये सब कहने की जरूरत नहीं है। उठो वैसे जैसे अल्लाह के नबी उठते थे, अरे बैठो वैसे जैसे अल्लाह के नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे अल्लाह के नबी चलते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए कहा है कि अगर कोई पैदा ना होता इस आलम इजाद में सरवर, जमीन पे सरवर आलम अगर पैदा ना होती, वो अल्लाह का नबी अगर पैदा ना होते, न आसमान होता, न जमीन होती, न सूरज होता, न चांद होता, न सितारे होते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, न औजे फलक में होते सितारे, न मस्जिद के ऊंचे मनारे मनारे, न मस्जिद, न मंदिर, न खाना होता। अरे मोहम्मद ना होती तो कुछ भी ना होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नबी का किरदार को देखिए, उस नबी के कैरेक्टर को देखिए, उस नबी का अखलाक को देखिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की गलियों में चलते थे, मदीने की गलियों में जब चलते थे, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चे को सलाम करने में पहल करते थे, मासूम बच्चे को सलाम करने में पहल करते थे। आज हम अपने अंदर मुहासबा करें। एक आलिम को भी कहता हूँ, एक मुफ्ती को भी कहता हूँ, एक डॉक्टर को भी कहता हूँ, एक प्रोफेसर को भी कहता हूँ, और एक बहुत बड़े मुखिया, बहुत बड़े एमएलए को भी मैं कहता हूँ कि तुम कौन सा खेत का मुनीम हो जो दूसरे को सलाम करने में गुरेज करते हो, दूसरे का सलाम के मुतमन्नी बन के भटके रहते हो कि हम अगर सलाम करेंगे तो मेरा पोजीशन खराब हो जाएगा, मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थर्ड क्लास के इंसान को, मजदूर क्लास के इंसान को सलाम करने में पहल करते हैं। और जानते हैं हम कितना खसारा में जा रहे हैं, कितना नुकसान में जा रहे हैं। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गूंजे की बात है, सुनते रहते हैं। सुनना कमाल नहीं है, अमल करना कमाल है। सुनना कमाल नहीं है, अमल करना कलाम कमाल है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने किस किताब में पढ़ा, आपने किस किताब का मुताला किया, किस सबक में आपने पढ़ा, कौन सी हदीस में आपने पढ़ लिया कि सिर्फ छोटा बड़ा को ही सलाम? किसी का किसी किताब में आपने मुताला किया? उस नबी के सामने में हमारी कोई औकात है? हम उस नबी के सामने में मेरी हमारी कोई औकात नहीं है। इंसान दुनिया में 0 पॉइंट में है। हम कौन सा खेत का मुनीम है? डॉक्टर है तो डॉक्टर का अपना जो है ये देखा ना, मुखिया है तो सोचता कि हम मुखिया है, हम अगर किसी को सलाम करेंगे तो मेरा पोजीशन खराब हो जाएगा। ये हमारी मुसलमान कौम की हसरत है, ये आदत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर पूर्णिया के अंदर कोई बड़ा डॉक्टर है, मैं यकीन के साथ कहूंगा कि अगर कोई बड़ा डॉक्टर जब उसके पास कोई मरीज पहुंचता है, वो डॉक्टर अगर उस मरीज को अदब के साथ सलाम करता है और फिर उसकी खैरियत देता है, उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, सलाम पेश करता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुदा की कसम मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा, वो मरीज जब उस डॉक्टर से इलाज करके आएगा, जब अपना घर पहुंचेगा, किस चौक में बैठेगा, किस चौराहे में बैठेगा, किस महफिल में बैठेगा, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, अल्लाह उस डॉक्टर का पोजीशन खराब नहीं करेगा। अल्लाह उस डॉक्टर का मकाम को और बुलंद करेगा, उसका मर्तबा को और बढ़ाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्यों? वो मरीज आकर के उसके हुस्न अखलाक के बारे में तारीफ बयान करेगा। ये कहेगा कि पूर्णिया में डॉक्टर है, इतना बेहतरीन बड़ा डॉक्टर है, लेकिन कितना हुस्न अखलाक है कि जब हम उसके पास पहुंचे तो हमको सलाम किया। तो बताइए, तारीफ हुई है, शिकायत हुई? अल्लाह उसका मकाम को बढ़ाया या घटाया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में चलते थे, मासूम बच्चा को, थर्ड क्लास के इंसान को, मजदूर क्लास के इंसान को सलाम करने में पहल किया करते थे। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान नहीं देते। हम लोग चलते हैं, एक मोमिन उधर से आता है, एक मोमिन इधर से जाता है, लेकिन सलाम नहीं करता है, अस्सलाम वालेकुम नहीं करता है। एक बार सलाम करने से एक मोमिन दूसरे मोमिन को अगर एक बार सलाम करेगा तो एक
एक बार अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से अल्लाह तबारक व तआला उसके आमाल नामा में 30 नेकियां लिख देते हैं। आज हम लोग कितना हंसाना मजा है, सलाम नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उस नबी का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा। अबू जहल ने जब कहा कि ऐ नबी, तुम अगर अल्लाह का पैगंबर हो तो चांद को टुकड़ा करके दिखाओ, वो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के सामने में शहादत की उंगली का इशारा किया तो चांद को दो टुकड़ा करवाया। उस नबी का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा होगा। अल्लाह ने अपना नबी को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मोहम्मद मेरे पेट के अंदर आया है, ऐ लोगों, मक्का वालों, मदीना वालों, मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत होने लगी है। जब मैं मक्के की गलियों में चलती हूँ, पथरीली जमीन जब मेरे कदमों से लगती है, ऐ लोगों, मुझे ऐसा लगता है कि वो पत्थर नहीं गुलाब का फूल महसूस करती हूँ। कितना बड़ा मकाम होगा। हम और आप कौन सा खेत का बोली है जो एक दूसरे को सलाम नहीं करते। मुहासबा कीजिए, मुआयना कीजिए। एक छोटी साहब सलाम नहीं करता है, एक मौली साहब सलाम नहीं करता है। एक मौली साहब, एक आलिम अगर एक जाहिल को सलाम नहीं करता है तो मैं कहता हूँ वो गलत फहमी में है। जी, सलाम किसी के लिए खास नहीं है। बाप बेटा को सलाम करे, बेटा बाप को सलाम करे, बेटी बाप को सलाम करे, बाप बेटी को सलाम करे, शोहर बीवी को सलाम करे। लेकिन यहाँ तो शोहर बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा क्या कहते हैं, ओहदेदार है, क्यों बीवी को सलाम करेगा, है ना। अपने आप को सोचता कि हम बहुत बड़े मालिक हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, ये हमारी और आपकी हम सबकी गलत फहमी है। उस नबी का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा। दोस्तों, वो नबी हजरत आमना फरमाती है कि जब मैं रात की तारीकी में बिस्तर पर सो जाती हूँ, सन्नाटा रात में जब बिस्तर में सो जाती हूँ, ऐ लोगों, मक्का वालों, मदीना वालों, मुझे अकीदत के साथ एक आसमान में झिलमिलाते हुए सितारे, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा होगा उस नबी का। हजरत आमना फरमाती है, जब मैं पानी लाने के लिए जाती हूँ और कुएं के अंदर जब अपना डोल डालती हूँ तो कुएं का पानी उछल कर मुझे इस्तकबाल करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अरे बेटी बताओ तो सही, तेरा जिस्म से इतनी खुशबू कहाँ से आती है, तुमने इतना महंगा अतर कहाँ से लगाई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी गोदी की बात है। हजरत आमना कहती है, अब्बा हुजूर, मेरे जिस्म से खुशबू का निकलना तो बहुत दूर की बात, मेरे जिस्म से खुशबू का निकलना तो बहुत दूर की बात। अब्बा हुजूर, मैं जहाँ से चलती हूँ, जिस दरो दीवार से चलती हूँ, वो दरो दीवार खुशबूदार हो जाती है, वो रास्ता खुशबूदार हो जाती है। मैं जहाँ थूकती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। कितना बड़ा मकाम और मर्तबा होगा। अल्लाह ने कुरान करीम। दोस्तों, बुजुर्गों, बस मैं चंद जुमले कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे हजरत तशरीफ फरमा चुके हैं। अल्लाह ने अपने हबीब के बारे में कुरान करीम के अंदर क्या ही नक्शा खींचा है, बेहतरीन जुमला बनाया है। अल्लाह ने सबसे पहले कुरान में अलीफ लिखा, तो अल्लाह ने जब कुरान में अलीफ लिखा तो नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में बा लिखा तो नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ता लिखा तो नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में सा लिखा तो नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने कुरान में जीम लिखा दोस्तों तो नबी को जमील बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अल्लाह ने कुरान में हा लिखा तो नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने आगे कुरान में हा लिखा तो नबी को हत्म मुसर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में दाल लिखा वो नबी को, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने कुरान में दाल लिखा तो नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में रा लिखा तो नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में जा लिखा तो नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में सीन लिखा, छोटी सीन लिखा तो
नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया। कहिए सुभान अल्लाह। उस नबी का कितना बड़ा मकाम होगा। अल्लाह ने कुरान में बड़ी सील लिखा दोस्तों, तो नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में स्वाद लिखा तो नबी को सादिक और सच्चा बना दिया। अल्लाह ने कुरान में स्वाद लिखा तो नबी को सादिक बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ता लिखा तो नबी को तारिक और ताहिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ज़ा लिखा तो नबी को ज़फ़र बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ऐन लिखा तो नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में गैर लिखा तो नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में आगे फा लिखा तो नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। ये है मेरे नबी की शान और उनका मर्तबा, मेरे नबी का मर्तबा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान में गैर लिखा तो नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फा लिखा तो नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लाम लिखा तो नबी को लईद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में नूर लिखा तो नबी को नूर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में नूर लिखा तो नबी को नज़ीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में वा लिखा तो नबी को वारिस बना दिया। और अल्लाह ने कुरान में हा लिखा तो नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने कुरान में या लिखा दोस्तों तो नबी को यासीन बना दिया। तो ये सुभान अल्लाह, ये है नबी की शान और मर्तबा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए कहा है लोगों कि दुनिया की सारी सुखमर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी इंसान तौसीफ नहीं कर सकते हैं। और आपके चेहरे अमर की तो बहुत दूर की बात, आपके जूती की भी तारीफ नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जो भी हमारे हुजूर पाक से सेटलमेंट हो गया, तो ये सुभान अल्लाह, जो भी मेरे हुजूर पाक से सेटलमेंट हो गया, समझ लो कि जन्नत भी उसके ऊपर परमानेंट हो गई। जन्नत भी उसके ऊपर परमानेंट हो गया। और जो टकराया नबी से, जो टकराया नबी से, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तारीख है गवाह। जो टकराया नबी से, तारीख है गवाह, दोनों जहां में उसका एक्सीडेंट हो गया। और सुनिएगा, और सुना तो आगे चलिए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, माजरत चाहता हूं मैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूं। हमारे दाश पर तशरीफ फरमा वाजिम हस्ती जनाब हजरत अब्दुल मौलाना हुज़ैफा साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मदरसा फिक्री बारी, उत्तर दिनाजपुर, बंगाल। यकीनन दोस्तों, ये आजिम हस्ती है जो जालिम के चेहरे को बेनकाब कर देने वाला, जालिम के चेहरे को बेनकाब कर देने वाला, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि हुस्न अखलाक से देने वाला, कुरान और हदीस की रोशनी में देने वाला आजिम हस्ती से मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाए। इस शेर के साथ ये मुकर्रिर अजीम आता है, जान लुत्फ अमीन आता है, अहले महफिल को साधना करने, फिक्र फन का सलीम आता है। मुकर्रिर ज़ौक़ साथ चले आओ, खतीब ज़ी साथ चले आओ।